Good morning, students. The first three types of capital adjustments are already explained. Hope you understand them. Now, the fourth is you are already familiar with the fourth type when the capital is made proportionate to the new profit sharing ratio. As you have done in admission, in the same way, you have to do what are the steps. You will calculate the adjusted capital. That adjusted capital of both the remaining partners you will add up and then divide that adjusted capital in the new profit sharing ratio, and then you will write it as balance and left to cash by cash or to current account by current account. That's it, as I have explained you earlier in your admission also. So here I have solved a sum for you, sum number 47. Amit, Balan and Chandar are partners. Their profit sharing ratio is half, 1/3, 1/6. Firstly, I have prepared the revaluation account. Revaluation account investment increased by investment, by provident fund, to machinery, to patent, to profit transfer to Amit, Balan and Chandar in the ratio 3:1. 600 was the profit. Further, now I am going to show you the adjustment of capital. Then you will understand the whole point which I have just told you right now. Capital account ABC. By balance brought down, already given in the question. By revaluation account, profit 300, 200, 100. By general reserve 4500, 3000, 1500. Goodwill treatment by Amit's capital, by balance capital to Chandar's 2700 and 1800. Now, investment was taken by Chandar to investment account 15,800. So, how you are going to adjust now capital? See, you will firstly calculate adjusted capital. Whenever I am going to tell you adjusted capital, you have to keep it in mind कि adjusted capital का मतलब है कि उसमें सब कुछ प्लस माइनस कर देना है. जो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट की वो प्लस माइनस करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल आता है. तो देखो 40,000 में मैंने प्लस किया 300, प्लस किया 4500, माइनस किया यहाँ से 2700. तो मेरे पास एडजस्टेड कैपिटल आ गया 42,100. सेम बी का भी 36,500 प्लस 200 प्लस 3,000 माइनस 1,800. ये मेरे पास आ गया 37,900. इन दोनों का टोटल था बेटा 80,000. यर इज़ अ ट्रीटमेंट. इन दोनों को ऐड अप कर लिया, टोटल आ गया. इसको अब अपने न्यू रेशियो में डिवाइड करना है विच इज़ 3:2. डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 48,000 एंड 32,000. तो इसको आपने लिख लेना यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है, क्लियर? दिस इज़ what I was explaining you कि first step is you have to I have not mentioned the steps because it is already explained in admission. This step you are already familiar कि पहले हमने एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, उन दोनों को टोटल करने के बाद उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेना है. डिवाइड करने के बाद उनको टू बैलेंस कैरी डाउन लिखने के बाद जिस साइड पे भी डेफिशिएंसी या सरप्लस होती है एंट्री अकॉर्डिंगली डाल देनी है. तो देखो टू बैलेंस कैरी डाउन इधर आ गया टू करंट अकाउंट. बी के अकाउंट में इधर पैसे कम थे तो टू करंट अकाउंट, इधर बाई करंट अकाउंट 5,900. ठीक है, ए के अकाउंट में. अब जो चंदर जो जा रहे हैं उसने इन्वेस्टमेंट ले ली. जो बचे हुए 10,300 उसके अकाउंट में बैलेंस थे वो हमने उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी. उसकी पेमेंट हमने नहीं की. तो दैट्स ऑल अबाउट योर सम. So fourth adjustment is clear. It was very easy. You have already practiced it in admission. Now the fifth adjustment, which is little bit different. एक ही डिफरेंस है उसमें, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है उसका. सी, इसमें बस यही है कि आपने कैश बैलेंस ही रखना है. ठीक है, कि एक वो कह देंगे कि आपको कैश बैलेंस भी रखना पड़ेगा. देखो, when the retiring partner is to be paid through amount bought by remaining partner in a manner कि रिटायरिंग पार्टनर को ऐसे पैसे देने हैं रिमेनिंग पार्टनर्स ने ताकि जो उनका कैपिटल है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो एंड एक डिज़ायर्ड कैश बैलेंस. क्वेश्चन में वो कहेंगे कि देयर कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चाहे वो जो जा रहा है उसको वो पैसे पे करें एंड एक कैश बैलेंस वो मेंशन करेंगे कि इतना बैलेंस कैश का होना चाहिए, इतना आपने कैपिटल रखना है.
तो आप वो कैसे करेंगे ये आप देखो। तो देखो अब फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल। आई डोंट थिंक हियर आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन कि व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, बस ये चेंज है यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग टोटल कैपिटल में एडजस्टेड कैपिटल्स को ऐड कर लेते थे। यहाँ पे बेटा क्या करना है, एक तो आपने पार्टनर्स के रिमेनिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल ऐड करने हैं। दूसरा जो पैसे शॉर्ट हो गए थे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को पे किए हैं, ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर को मतलब जो पैसे शॉर्ट हो गए थे वो पूरे किए हैं, वो ऐड करने हैं। और उसमें ऐड करना है मिनिमम कैश बैलेंस जो क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर ने पैसे निकाले उसकी शॉर्टेज भी उन्होंने पूरी करनी है, वो ऐड करनी है आपने। और मिनिमम कैश बैलेंस जो रिक्वायर्ड है वो ऐड करना है। इससे आपके पास आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फिर इस न्यू कैपिटल को आपने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। और लास्ट स्टेप सरप्लस और डेफिसिट, जैसे टू बैलेंस कैरी डाउन मीन्स टू करंट अकाउंट बाई करंट अकाउंट और इधर टू कैश बाई कैश, जिस तरफ बैलेंस आ गया आपने एंट्री डाल देनी है। तो आपको बात समझ लगी? तो देखो अब अगर तो सरप्लस है तो उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना, और अगर डेफिसिट है तो उसको करंट अकाउंट में एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स है 3। इट्स योर 53rd सम फ्रॉम योर बुक। देयर आर ओनली 55 और 56 सम्स इन योर बुक, ओके। सो कंप्लीट देम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक 2-3 आई हैव सॉल्व्ड among them. So I think very few sums are there. In this chapter you have very small sums. Only few big long questions are there. Out of that I think 4-5 so I have only solved for you. So you have less work to do now. But do it religiously, please. So we see X, Y, Z are partner. Their ratio is 5:3:2. Y retires. Now capital after adjustment is mentioned in the question 103680 and 87840. Cash balance, they said it is 9600 and minimum cash, this is the point. When they are going to ask you, they will tell you in the question, you will come to know that this is the fifth adjustment. When they are going to ask you that minimum cash balance is 7200, means you have to keep with you 7200 cash at least. So it's very simple. See, total capital before retirement, you will add the adjusted capital of X, Y and Z. It comes to 218,400. Now there was an cash balance 9600 and minimum cash 7200. You will calculate the difference, means how much cash is available with you. 96 तो पड़ा है, उसमें से 7200 तो आपने मिनिमम रखने ही रखने, खर्चने नहीं है। तो how much you can use? 2400 you can use. So you will deduct this. Combined capital of X and Z. From that total you will deduct this 2400, which means I have used it, rest I am going to contribute. Clear? कि इतना मैंने यूज़ कर लिया है, मेरे पास 2400 रुपये कैश पड़ा है मिनिमम कैश यूज़ करने के बाद, ठीक है। मतलब 9600 मेरे पास थे, उसमें से आपने कहा कि 7200 तुमने रखने ही रखने, तो वो मैंने साइड पे रख दिए, ठीक है। अब मेरे पास 2400 है, वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो वो तुमने यूज़ करके अब तुम्हें कितना कैपिटल मतलब करना है सेट 2,16,000 का, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो न्यू रेशियो में डिवाइड करके एक्स का कैपिटल आ गया तुम्हारा 1,29,600। उसका ओल्ड कैपिटल कितना था? उसका ओल्ड कैपिटल है 103680, इसमें से माइनस कर दो, मतलब उसको पैसे कितने लाने पड़ेंगे? 25,920। सेम जेड का देख लो, 2,16,000 का, उसका 86,400 आ गया। ओल्ड कैपिटल उसका था 26,880, उसको कितने पैसे लाने पड़ेंगे? 59,520। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रिटायरमेंट चैप्टर. After this, from my side, chapter is over. I have discussed all the important points, all the essential topics are discussed with you.
Now it's up to your practice. The more you are going to solve the sums, the more they will come. We will gain the confidence. So this method is clear. अब आप कहोगे कि मैम आपने फॉर्मूला में तो वो प्लस किया था अमाउंट, आई थिंक आपके दिमाग में वो बात चल रही होगी बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन उस तरह का था, यहाँ पे प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 9600 ऑलरेडी पैसे थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि 7200 रख लो, फिर भी मेरे पास 2400 रह गया था सरप्लस मेरे पास। तो मेरा जितना मुझे कैपिटल चाहिए था 2,18,400, उसमें से मैंने 2,400 माइनस कर दिया, ये तो मेरे पास है ही, ये मैं यूज़ कर सकती हूँ, बाकी मैंने डिवाइड करके पार्टनर से मंगवा लिया। ठीक है, दैट वाज द पॉइंट। अब अगर सारी कन्फ्यूजन होपफुली क्लियर हैं, स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू आर ऑलवेज वेलकम, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।